So, welcome everyone. So, I am Sunil Chandra. I will just briefly introduce what we are doing as part of United Science Foundation. This may be a repetition for many of you who are in the participants list, but still, it's good to repeat things. This is our foundation logo, which is basically half banyan tree and half image of some electronic chip. So one can imagine like this is a message of our foundation to the society that we want technology and nature both grow together. And this is a national level registered society, and our aim is to start many centers in different parts of India so that we can reach to mainly rural part of India, where awareness about science education and technology is limited. And we also try to develop different methodologies by which we can avail things to the beneficiaries by online media as well. So our online handles are like this. So one can search United Science Foundation on Facebook, or contact on WhatsApp, official WhatsApp number, or Instagram, and we are also on Twitter. So we are trying to connect by people by different means. This is basically run by contributed donation by the members, and members are from different parts of our India and abroad. They are mostly senior professors and a working professional like Dr. Sarmaji, and many of our young colleagues like postdocs and doctorals like Deepthi and others. And our this whole foundation works like in two main governing bodies. One is like the governing council, executive council, which includes the council members and core members. And another is like advisory board, which basically includes senior professors who help us to frame our programs and all. So this is like a plot which shows like we are slowly spreading over the country. This was our ground highlight from the ground event that was in 2019, before this pandemic. And we had really got a very nice response from ground event. This was happened in November 2019, and roughly 3,000 students and teachers had attended this in 2 days event. And we are 4 kind of members: life members, associate members, school college representative, students members, and we also have by nominations like advisory board, honorary fellows, and benefactors. So the current event what you are attending, this Ask Us, it's a podcast event run by United Science Foundation. And in this event, what we do, we invite one expert from a particular field, and we just talk informally about the very development of the field and many introductory questions, so that students can understand and students can even interact. So basically this provides a direct link between some expert to students. So students can directly interact with somebody who is a working professional in scientific research. So Dr. Rahi is our today's expert, and Dr. Sarma is our today's interviewer who will be conducting this entire session. So I invite Dr. Sarma to take over this entire session from this point. Thanks a lot. I am really happy, and I look forward learning about a lot of new things what I don't know about sciences. Thank you. Dr. Sarma, you can take over. I will just switch off my screen sharing now. Okay. Yeah. Okay. Should I proceed? Yes, please. Okay. So first of all, I'm going to introduce
आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमसे कहा गया कि आप हिंदी में बोलिएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड। तो डॉक्टर प्रवीण राही हमारे कलीग्स हैं। एंड डॉक्टर राही ने अपनी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी एमपी से कंप्लीट किया, मध्य प्रदेश से। इसके बाद डॉक्टर राही ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की IHBT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, हिमाचल प्रदेश। और सिंस 8 years, Dr. Rahi is working with NCMR, National Center for Microbial Resource. Dr. Rahi is expert of plant microbe interaction. कैसे सूक्ष्म जीव पौधों से इंटरैक्ट करते हैं, एंड ही इज डूइंग होल लॉट ऑफ गुड रिसर्च। इनकी बहुत सारी चीजें, 7 से 15 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर राही का इस फील्ड का। तो मुझे लगा कि इस बार हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, आप पढ़ते होंगे कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इस कृषि में सूक्ष्म जीवों की क्या अहम भूमिका है, हम कैसे उनको, उनका क्या रोल है, प्रोडक्टिविटी में क्या पार्ट है, सस्टेनेबल अर्थ का क्या कंसेप्ट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या कंसेप्ट है। तो एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सी फील्ड है, बहुत इमर्जिंग फील्ड है। और अभी इंडियन लेवल या नेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट डॉक्टर राय, मुझे लग रहा है इनसे बेटर कोई काम इस फील्ड में अभी, मतलब बेटर कर रहे होंगे, बट वन ऑफ द बेस्ट लाइक पर्सन वर्किंग इन द फील्ड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राही से, प्लीज पहले 5 से 10 मिनट आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर राही। To Dr. Om for such a wonderful word, and I'll also talk a little bit in English, so thoda sa Hindi, thoda English, because many of the scientific words you will not be able to find very good meaning or easy translation in Hindi. So I'll keep on speaking Hindi and English so that it will be more like easily people can absorb it. And मैं प्रेजेंटेशन अपना शेयर करना चाह रहा हूँ अभी, तो होस्ट में प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय प्रेजेंटेशन। आई थिंक इट इज डिसेबल्ड राइट नाउ। या नाउ इट इज। तो मैं ये जो जैसे डॉक्टर ओम ने बताया कि एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन पर्सपेक्टिव से, बट अगर हम देखें ओवरऑल एक ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट से या ह्यूमन एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाउ वी ह्यूमन बिकेम व्हाट वी आर टुडे, तो इसके पीछे एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है और एग्रीकल्चर इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर सिस्टम अगर इवॉल्व नहीं हुआ होता, तो शायद से आज हम जो हैं आज वो ना होते। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट aspect है for us human, and the microbial association with this agriculture system or the crops which we cultivate और जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमेशा से। तो वो रोल हम कैसे डिसाइड कर, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रोल है एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर पहले जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप हुए, तो उस टाइम इतना इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने की और उनको देखने का, अगर आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी के या बायोलॉजी के क्लासेस में, तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही लोगों को पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे भी कुछ जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और जिनको हम देख नहीं पाते हैं, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन लाइफ, एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। तो एक तो चीज़ है कि वो डायरेक्टली हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि माइक्रोबियल इंटरेक्शन विद ह्यूमन, लाइक दे आर देयर इन आवर बॉडी, दे डू सो मेनी good function for us. In addition to that, there are certain pathogens. They can make us sick or they can
there are multiple aspects of microbiology, but indirect interactions like microorganisms playing some role in ecosystem or agriculture, and it is enhancing the productivity of the agriculture system. तो अगर ऐसा भी है तो उससे भी हमें इनडायरेक्टली एक बेनिफिट मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन थे ह्यूमंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च एडवांस होता गया, द वे people keep on studying the microorganisms more and more details, and now with the advent of molecular biology tools like next-gen sequencing and different platforms now which are available to understand and to explore the microbial community. So now we can try to get more and more information from this microbial world. So the presentation which I am going to give, or the topic I am going to talk today, is microbial world and agriculture, and what's the role of this phytomicrobiome, which is we call it a reservoir for sustainable agriculture. So when we talk about agriculture, we have to go back in the history and see when the agriculture system developed or how it started. So we humans, we invented agriculture during Neolithic era, and that era is quite old, like it's more than 700 to 1000 years back, 1000 years back. And there are very few crops that time. So people used to cultivate a very few of these crops, and slowly the agriculture system keeps on evolving, and with the civilization, different civilizations, they flourish during that period. And lately, what happened with the, you must have heard that many civilizations, they collapsed in different time periods. And one of the major cause, or one of the major reasons for this collapse of agriculture system was this civilization was failure of agriculture systems. And many a times there is salinization of the soils, or desiccation, like desertification, soil erosion, ecological degradation, exhaustion of soils. So these are different causes wherein people were not able to cultivate the crops they used to cultivate, and with the scarcity of food, there is no food to feed the people, and slowly these civilizations, they even either they migrated from those locations or they just vanished from the earth. So after, if you talk about modern agriculture system, so modern agriculture system is more of industrial, driven by industrial revolution. So the industrial revolution, it happened sometime in 1940s or 1930s, or like in early 20th century, wherein people started developing different kind of processed products in big industry. And this industrial revolution, it led to development of chemical fertilizers, equipment, and like mechanized systems which can help us in agriculture. So in India, this revolution of agriculture, it came somewhere in early 1970s. And at that time, there were so many different soil management practices which were introduced into our agriculture system, and plant genetics, high yielding varieties were introduced into Indian agriculture system. So with this green revolution across the globe, what happened that there are several challenges that we are now facing, because we keep on cultivating one or two crops for so many years in a particular ecological niche or in a particular field. So what happens when you do a monoculture, or you apply chemical fertilizer, or you do mechanical tillage? So it leads to changes in the soil ecosystem, and these soil of these fields, they keep on getting degraded. So the increase in soil salinity, and because of this green revolution, many places, people, because we have to feed a larger population,
people went for, they were looking for newer lands. So deforestation is one of the major challenge which Green Revolution brought to us. And then now what we are seeing that there are, uh, in US, there are more and more population. So there are more cities which are coming up. So now we are facing so many different challenges, even after this Green Revolution, that we are not able to, it is predicted that, that with this particular speed, the soil keeps on degrading, and we'll be having less and less land for cultivation, and there will be erosions of soil, so we'll be losing more and more fertile soils. So there are going to be a time when again our whole human civilization will face a time of collapse or extinction. To withstand it or to negate this kind of process, we need to develop tools which can lead to sustainable development of agriculture. So if we take care of soil health, if we take care of soil ecosystems, we can take care of whole human population. So and recently this United Nations United Nations has set 17 development goals. And if we take care of soil ecosystems, we can manage 8 of these 17 sustainable development goals. So how we can do that? So microorganisms, because during this industrial revolution or the Green Revolution, we focused more on providing nutrients by adding chemicals. And if we want to manage the crops, we want to remove the pest, or we want to do any kind of thing, we were just putting chemicals like chemical pesticide, chemical fertilizers. So all these things, what they did is that because of a lot of chemical inflow, the soil ecosystem got disturbed, and the microbial communities which were there, which were taking care of the whole ecosystem, because microorganisms are not just there to provide nutrients to the plant or not to infect the crops, but they also have several roles in the nutrient cycle. So all these nutrient cycles, may it be nitrogen cycle, may it be phosphorus cycle, all these nutrient cycles, they got disturbed because we are seeing a lot of inflow of a particular kind of nutrient. And because of that inflow, the microbial population which used to fix nitrogen, or the population which used to solubilize phosphorus or solubilize potassium, or all different kind of micronutrients, they start slowly they get vanished from the ecosystem. And the other challenge we faced during this Green Revolution, that challenge of monoculture, because if you want to mechanize this particular agriculture system, you need to have a single crop in a larger area so that you can use the harvester and to harvest the crop. And because it's easy, if you do a mixed cropping, it will be difficult for a mechanical harvester to harvest the crop, because you will be getting 2 different kind of crops. One crop may mature first and the another crop may mature a little late. So there will be differences in harvesting. So just to avoid this kind of thing, people started using monocultures. And these monocultures, like cultivating wheat for 10, 20 years continuously in a particular field, and then cultivating maybe rice in that field for 10, 20 years. So monoculture has contributed a lot to the degradation of the soil ecosystem, because a crop has a very specific kind of requirement, and you keep on sucking up all those micronutrients. If you're not replacing them, you might be replacing the major nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium, but you might not be looking into the micronutrients. Micronutrients are like zinc, and there are several, sulfur and manganese, boron, and all that. So you might not be looking into those micronutrients in those details. So because all the farmer practices for agriculture, for most of the people, they were focusing initially in the Green Revolution on NPK. Initially, it was N only. It was just putting nitrogen in the form of urea or
some other kind of formulations. But slowly people started adding phosphorus into it and then potassium into it. But again, now people realize that micronutrients are also important. But managing all these profiles, like which soil need which micronutrient and what level, which soil need this so it's very difficult to manage. So the microorganisms, previously the microorganisms used to do this kind of activity on their own, because they are in that particular system, and they find that, okay, plants need this kind of nutrient or micronutrient. So they will release, with their activity, they will release that, make that nutrient available to the plant, and plants will grow happily. So by the addition of these chemical fertilizers and pesticides, we have changed the ecosystem, and now there is a challenge in front of us to make these soils agriculture system sustainable. To make this agriculture system again sustainable, or to keep on cultivating for several hundred years, we need to develop technologies, or we need to work on the technologies which can withstand all different kind of challenges. So my research is focused on looking into the phytomicrobiome. Phytomicrobiome, if we talk about phytomicrobiome, it is the microbes which are associated with plants in one or another way. So again, there might be direct or indirect interactions, and there might be beneficial and harmful interactions. So the plants, as I told you, that they need nutrients, they need so many things from the soil to grow and then yield a particular crop and give us the agriculture produce. So to do that, there are several interactions with, they always interact with microorganisms, and the microorganisms which benefits the plant, which provides them certain kind of nutrients. So these organisms, we call them beneficial organisms. And there are certain set of organisms which could be harmful for the plant, and they either cause diseases, they infect the plant system, and then they spread into the crops, and then they destroy all the crops. And उससे क्या होगा कि crops पूरे के पूरे damage हो जाएंगे, and you will not be able to get the yield which you are expecting. The farmer is expecting a particular yield. Okay, in this particular field, he or she might be expecting 10 tons of suppose wheat, but if there is an infection, so the yield may go down to like half of the yield, or in the worst infections, they might not get any yield. So there are several serious challenges when we look into the plant microbe interactions. So there are, we need to identify the organisms which are bad, and we also need to identify organisms which are good. So when we look into the phytomicrobiome, and we found that a large majority of these organisms are good, and very few which are bad, we can easily identify. And in the past, I think 1 or 2 centuries, people are working a lot on plant-associated microorganisms, and we have a good understanding of phytopathogens, the organisms which are pathogenic to the plant ecosystem. So people are now aware of that how, but still newer pathogens are always coming up. So it's continuously a struggle between the researchers and the evolution of these new pathogens. So we keep on updating the list of newer pathogens. But the beneficial organisms, these organisms are like previously, because of negligence, or mostly people were not focusing on this particular aspect of beneficial microorganisms, and there were chemical options which were available. So most of the people, they never thought, okay, we should focus on these beneficial organisms. So now, because of this understanding that, okay, if we keep on doing this chemical-based agriculture systems, we might be losing our soils, and after 5-10 years, we might not be able to cultivate any crop there. So now people have started looking into these beneficial organisms with
tremendous focus, and there are many researchers across the globe, those who are trying to understand the role of these beneficial microorganisms. And now we have newer technologies, wherein previously there was another challenge when we talk about microorganisms, because the microorganisms, we cannot cultivate all of them. So it's not like like plant, we can see them, okay, this is the plant, and then we can domesticate it. Microorganisms are very difficult to handle. First thing is, you'll not be able to see them. So you need to find tools how to know them. So now with the development of molecular biology tools, we can extract the DNA from the soil or the plant register, or maybe the plant part of any plant. And then we can sequence a particular portion of a particular gene or a particular amplicon from that microbial community. And that sequence will give us information about the composition of microbes. उस soil में या उस plant के particular part में कौन कौन से organisms हैं. तो जब हमें ये पता चलने लगा कि ये organisms different तरह के होते हैं और ये अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, तो फिर हम इनके लिए अलग अलग strategies बनाने लगे. तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के साथ बेनिफिशियल और हार्मफुल इंटरेक्शंस करते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसके बाद, जब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमें ये पता है कि कुछ बेनिफिशियल है, कुछ हार्मफुल है. इसके बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि इनका ओरिजिन क्या है. तो ओरिजिन जानने के लिए अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्लांट्स ग्रो कैसे इकोसिस्टम में हो रहे हैं, कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, क्या ये सॉइल में ग्रो हो रहे हैं, या ये जो है ये अब बहुत सारे लोग एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, उन कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, या फिर ये कुछ और तरीके से कल्टीवेट किए जा रहे हैं. तो जिस भी तरह से प्लांट कल्टीवेट कर रहा है, जिसकी इकोसिस्टम में यहाँ प्लांट्स को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, मोस्ट ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट के साथ एसोसिएटेड होते हैं या एसोसिएशन करते हैं, वो उसके आसपास के इन्वायरमेंट से आते हैं. So mostly if we talk about agriculture system today, so majority of the crops are cultivated in fields, and the origin of microorganisms which are associated with plants are generally the local microbial community of that particular soil. There are certain reports that seeds are also carrying some of the microbial communities, and they also when you plant that seed in your area or in your field, that microorganism will also multiply there, and it can again form an association with the plant. And there are phylospheric organisms, the plants, the microorganisms which are residing on the upper part of the plant body. So these organisms, they generally come from the aerial root. So if you are doing it in field, definitely air will carry dust particles. Dust particles will also carry some of the microorganisms, so they will settle on the leaves, and then that's how it starts the interaction. And there are several reports that microorganisms which enters into the root ecosystem, roots of the plant, they can translocate to the upper body of the plant, and you might find some of the organisms which are there in the soil also in the leaves of the plant as a endophytic organism. So now we know that there are beneficial organisms, and they live in soil ecosystems. If we talk about fields, so they can interact with the plant. So how to harness these phytomicrobiomes? How to harness their potential to get the higher yields and better crops? So now this concept of synthetic communities, designing synthetic communities is coming up, and these synthetic communities means you identify the organisms, isolate organisms, identify them, and understand their microbial, their plant growth promoting attributes, like different activities of their plant growth promotion. And based on that, you make a combination or a community, like put 5, 10, 20 organisms in a
community, and then you inoculate it. So why this synthetic community? Why not just one or two bacteria or one or two organisms? Because our past experiences has shown us that when you put one organism or two organisms, they might not be able to withstand the newer ecosystem, the field you are introducing. So means the local community or the community which is already well established in that particular field may not allow the newer introduced microorganisms to interact with the plant, and they'll not be able to compete with the local community. But if you provide whole set of community which include the microorganisms which can beneficial to the plant, and the microorganisms which are beneficial to the plant growth promoting bacteria, means the organisms which can support the plant growth promoting bacteria. So this kind of community, chances of getting this these organisms back in the soil, and they can outcompete the local communities in better way, and then they can enhance the crop productivity. So in the last, I just want to conclude now. Also, I also want to make one particular point. Then that when we thought of when we think about plant microbe interaction, it doesn't mean that plants are the only beneficiary from these interactions. We humans are indirectly getting benefits, and many times directly also. Many of the microorganisms, they come to when we consume a plant product or a product like maybe it has a fruit or maybe a salad crop. So when you consume this kind of crops or plant produce, many microorganisms which are in the plants as endophyte or maybe in the surface, generally surfaces surface microorganisms, they are washed away. But if there are plenty amount of microorganisms as endophytes, when we consume these plant produce, they enter into our gut ecosystem, and the endophytic environment and our gut ecosystem environment is quite similar. It has very low oxygen levels there, so there is a possibility that we can directly get more and more microorganisms from to the plant microbe interaction channel. So this way we can also increase our gut microbial communities, and we can directly establish a contact with the environment. Because nowadays what is happening that most of us, we do not go to the fields, we do not interact with the plants directly, we do not touch it. Many times we do not touch the plants growing in the fields, or we do not touch even the soils in the fields. So we are losing our interactions, direct contacts with the soils, and that's very important because from soils you receive lot many microorganisms, and these microorganisms are not always bad. Many of these organisms are really good, and they enrich they make our human microbiome more diverse. So this is another approach which I'm right now working, wherein we are trying to find ways to establish a direct relation between the soil microorganisms, their horizontal transfer, their vertical transfer to plants and plant products to the humans, or what we call consumers. With that, thank you, and now we can have a discussion if you have any questions. Dr. Rahi, it's a very nice presentation and very valuable for the student. हमें जो कहना है, हमारा यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन, इसके जो मेजर मेंबर हैं दे आर एस्ट्रोफिजिसिस्ट और फिजिसिस्ट. तो हमें बताते हुए बहुत मतलब हर्ष हो रहा है कि जो बायोफिजिक्स है या जो फिजिक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पुराना है और बहुत फ्रूटफुल रहा है. कार्ल लूज को अगर हम देखेंगे, कार्ल लूज, मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, पॉपुलर आर्टिकल है इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिश्ड.
कार्ल वुज फ्रॉम बायोफिजिक्स टू इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी। तो कार्ल वुज ने बहुत सारा काम किया माइक्रोबायोलॉजी के लिए, लेकिन वो बेसिकली क्या थे, फिजिसिस्ट थे। उनकी जो बेसिक डिग्री है फिजिक्स में है, मास्टर डिग्री फिजिक्स में है, उनकी डॉक्टरेट फिजिक्स में है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ किया। इवोल्यूशनरी जो आज की मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी है वो कार्ल वुज के कारण ही है, उनके कारण है। अभी जो अपने हैं वेंकट रमन, जिनको नोबेल प्राइज मिला है माइक्रो 16S की प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करने पे, उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बीएससी की, फिर यूएस से फिजिक्स में मास्टर किया, फिर फिजिक्स में पीएचडी किया। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत मतलब वो है। तो डॉक्टर राही के जितने सारे अप्रोचेस हैं, जो अभी हमने कहा कि जो इंडिया है, हम कहते हैं कि वो है भारत एक कृषि प्रधान देश है, या जो भारत की इकोनॉमी है, जो भारत का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो किस पे आधारित है, कृषि पे आधारित है। अगर हमारी कृषि ही सही नहीं होगी तो हम उसे बहुत सारा डेवलप नहीं कर सकते हैं। और कृषि में इन सूक्ष्म जीवों की बहुत अहम भूमिका है। कार्ल वुज के शब्दों में ही अगर मैं कहना चाहूंगा तो उन्होंने लिखा है कि अगर हम पृथ्वी से सारे लाइफ को हटा दें, चाहे प्लांट एनिमल सारे लाइफ को, तो पृथ्वी को सस्टेन करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी से सारे सूक्ष्म जीवों को हटा दें, जितनी भी सूक्ष्म जीवों की पॉपुलेशन है, अगर उन्हीं को हम खत्म कर दें तो पृथ्वी का जो एग्जिस्टेंस है वही नहीं रहेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक बायोफिजिसिस्ट ने क्या कहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट है, सस्टेनेबल इसका अर्थ का कंसेप्ट है, जो हमारा प्रेजेंटेशन का, जो हमारी प्रेजेंटेशन की टाइटल थी वो थी, डॉक्टर राही ने दिया था हार्नेसिंग फाइटो माइक्रोबायोम। तो डॉक्टर राही, हम अपने बच्चों के लिए आपसे चाहेंगे कि आप प्लीज एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज अ फाइटो माइक्रोबायोम। फाइटो माइक्रोबायोम क्या होता है, सिंपल शब्दों में। हमारे बच्चे विकास जो हैं ये 10+2 स्टैंडर्ड के होंगे या बहुत कम, लाइक उस कॉम्प्लेक्सिटी को, तो बहुत सिंपल शब्दों में फाइटो माइक्रोबायोम क्या होता है? मैं समझ सकता हूँ कि काफी सारे बच्चे जो हैं बहुत छोटी क्लासेस से भी होंगे। हाँ। जरूरी नहीं है कि वो उन्होंने ये सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में या सूक्ष्म जीवों के बारे में इतने डिटेल में पढ़ा होगा। तो जो पौधा है, कोई भी प्लांट है, जिस तरह से मैं बता रहा था कि हम इंसानों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होते हैं, उनके साथ अलग अलग तरह के कनेक्शंस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ हमें बीमार करते हैं, कुछ हमें बेनिफिट करते हैं। उसी तरह से कोई भी पौधा है उसके साथ भी इसी तरह के इंटरेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। और ये जो इंटरेक्शंस हैं वो जैसे कोई पौधा है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन का पॉइंट है रूट सिस्टम, क्योंकि रूट सिस्टम जो है वो वहीं से कोई भी प्लांट है वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, और चाहे वो वाटर हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, वो सारे वहीं से एब्जॉर्ब करता है और वहीं से बहुत सारे एक्सुडेट्स को रिलीज करता है जो उसमें शो करना होता है। बड़े सारी चीज़ें उसके गटेशन और ट्रांसमिशन के थ्रू भी होती हैं, लेकिन रूट एक्सुडेट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वे होता है अपने जो चीज़ें उसको एक्सपेल करनी है अपनी बॉडी से प्लांट को, वो उसके थ्रू वो एक्सपेल करता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सुडेट्स है रूट इकोसिस्टम के थ्रू, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे एक तरह से अट्रैक्ट करता है। बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के लिए अच्छे या बुरे हो सकते हैं, वो उन एक्सुडेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब प्लांट एक अच्छी सेहत से एक प्लांट ग्रो कर रहा है, जिसका अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, एक हेल्दी इकोसिस्टम में वो ग्रो कर रहा है, तो उस प्लांट का एक अपना एक सिस्टम होता है जहाँ पे वो कौन सा एक्सुडेट उसको रिलीज करना है ताकि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट कर पाए, वो उसको पता होता है। यानी कि उसको पता है कि अगर मैं ये इस तरह के एक्सुडेट्स रिलीज करूंगा तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स अट्रैक्ट होंगे। तो वो अपने एक्सुडेट्स को रिलीज करने के तरीके को वो कंट्रोल करता है प्लांट, और उससे वो कंट्रोल करता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो उसके राइजोस्फीयर में या रूट के आसपास वाली जो इन्वायरमेंट है वहां पे वो आ जाए या कॉलोनाइज कर पाए। अब जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसने अट्रैक्ट किए, अगर वो जानबूझ के कर रहा है, यानी कि वो अपने अच्छे ही ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करेगा,
तो अच्छे यानी कि वो उसको कैसे पता चलेगा कि अच्छा है बुरा है? अब प्लांट को जरूरत है नाइट्रोजन की, तो वो क्या करेगा, इस तरह के एडिब्यूरेट रिलीज करेगा जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को वहां पे अट्रैक्ट कर पाए। जब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ले उसके लिए और उसको लगे कि ये सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मेरे पास आ गया है, अब मुझे नाइट्रोजन और नहीं चाहिए, तो वो अपने जो एब्जॉर्बेट्स हैं उनको चैनलाइज करेगा किसी और तरह के ऑर्गेनिज्म को कॉलोनाइज कराने के लिए। तो इस तरह से प्लांट इस इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्लांट इज द होस्ट एंड मोस्टली ये इस तरह के इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ सर्टन environmental stresses और certain लाइक कोई सॉइल इकोसिस्टम इतना डिस्टर्ब है कि वहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सर्स है ही नहीं, या जो और तरह के जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर उधर उसको चाहिए तो वो है ही नहीं सॉइल में। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसको न्यूट्रिएंट स्ट्रेस हो जाता है, उसको अगर वहाँ पे कोई पैथोजेंस की बिल्डअप बहुत ज्यादा है, बुरे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट को डिजीज कर सकते हैं, उनका बिल्डअप अगर ज्यादा है तो उसको बायोटिक स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्ट्रेस अगर हो जाते हैं तो वो सारा का सारा स्ट्रेस सिस्टम जो है वो प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर डालता है। मतलब आपके कहने का ये तात्पर्य है या ये अभिप्राय है कि जो प्लांट की हेल्थ है या प्लांट लाइफ है या प्लांट का जीवन है, उसमें सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका, अगर वो न हो, प्लांट अपने सुरक्षा के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए एक विशेष तरह का मतलब स्राव, जिसे हम एक्सुडेट आप कह रहे हैं, एक केमिकल या कुछ ऐसे निकालता है जिससे माइक्रोब उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी हेल्थ या उनके स्वास्थ्य में या उनकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करते हैं, है ना? ओके, जो हमारा दूसरा बहुत डॉक्टर राही ने कहा प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शन या नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत सारे बच्चे उसे पढ़ते होंगे अपने हाई स्कूल की बुक में या इंटरमीडिएट की बायोलॉजी की बुक में। सबसे पहले बेसिक जो पढ़ाया जाता है कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो जीवाणु करता है, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। और मटर के जो नीचे का प्लांट होता है, डॉक्टर राही उस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, मटर तो एक बेसिक प्लांट है, तो उसमें गांठें पाई जाती हैं और वो गांठ क्या होती है, बैक्टीरिया की होती है, जिसे बैक्टीरिया बनाता है, उसका नाम राइजोबिया है। तो डॉक्टर राही ने राइजोबियम पे बहुत सारा काम किया है, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले मैं देखता था जब अपने धान के खेत में जाता था तो जहां मटर बोई हुई होती थी, अगर उसमें क्रॉप लगाई जा रही धान की तो वो पोर्शन अलग दिखता था, उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्स हो चुका होता था। तो उस पे कितने फार्मूलेशन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं डॉक्टर राही, आप या उससे बेटर कुछ हो रहा है क्या, उसका फार्मूलेशन है क्या, अभी मार्केट में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं उस पे जीवाणु बेस्ड फार्मूलेशन पे, और वो कैसे रासायनिक फर्टिलाइजर या रासायनिक उर्वरक से जो जीवाणु बेस्ड फार्मूलेशन है या जीवाणुओं पे आधारित जो फर्टिलाइजर्स हैं या उर्वरक हैं वो कैसे ज्यादा बेटर हैं, कैसे वो सॉइल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो ये आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन आपने बनाया है। तो पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो ये रूट नोड्यूलेट करते हैं या जो आप बता रहे हैं कि जड़ों में गांठें होती हैं, ये किस तरह से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आपने बताया कि राइजोबिया, जो हम बच्चों ने शायद से पढ़ा भी होगा राइजोबिया के बारे में, और राइजोबियम बोलते हैं जीनस को। तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे राइजोबिया के मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ राइजोबिया, जो राइजोबिया एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं आज। उसमें सिर्फ एक या दो स्पीसीज नहीं है, एक या दो जीनस नहीं है, बड़े सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आज हमें पता लगा है कि सिर्फ एक या दो तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो बहुत ही डाइवर्स होते हैं, उनमें बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हो जाती है कि ये जो राइजोबिया और प्लांट का इंटरेक्शन है बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत मतलब हर एक प्लांट, हर एक पौधा जो है वो एक पर्टिकुलर राइजोबिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। यानी कि हर एक प्लांट का एक अपना स्पेसिफिक पार्टनर होता है और वो उसी पार्टनर के साथ मॉड्यूलेशन करता है या उसी पार्टनर को वो अलाउ करता है अपने रूट इकोसिस्टम में आने के लिए और वहाँ पे घर बना के नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। तो ये एक इंटरेक्शन है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है। तो इस स्पेसिफिसिटी होने की वजह से एक और चैलेंज हमारे पास आ जाता है, जो वैज्ञानिक इस फील्ड में या इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, कि अब आपको हर एक क्रॉप के लिए, यानी कि आप कोई ऐसी
जैसे कि खाद है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वो तो आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम है सपोज, तो उनका कॉम्बिनेशन किस फील्ड में आपको कैसा कैसा है, उसके हिसाब से आपने सिर्फ ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो जो कि बहुत आसान है। कि एक बार अगर किसी ने स्टैंडर्डाइज कर लिया, यानी कि किसी वैज्ञानिक ने इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया कि हाँ गन्ने के खेत में रेशो डालना है, चने के खेत में ये रेशो डालना है, और धान के खेत में ये रेशो डालना है, तो वो एक प्रैक्टिस बन जाती है। लेकिन जब जब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और जो प्लांट हैं, यहाँ पे हजारों इंटरेक्शन हैं, यानी कि हजारों तरह के ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं प्लांट के साथ। तो अब हमें ये चूज कर लेना कि ये ऑर्गेनिज्म जो है हम इस प्लांट से उठाएंगे और उसको हमने स्टडी किया और उसको हम खेत में डाल देंगे और वो उसको बेनिफिट करेगा ही करेगा। वो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। क्या जो हम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म उठा रहे हैं, क्या वो कंपेटिबल है, जो होस्ट हम जिसके अंदर हम ये डालने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर वो कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो उस कंपेटिबिलिटी को हम किस तरह से आउटकम कर सकते हैं, यानी कि हमें कोई ऐसे सूक्ष्म जीवों का चुनाव करना पड़ेगा जो उस प्लांट के स्ट्रेटोस्फीयर में जाके एस्टेब्लिश कर पाए या रूट में जाके एस्टेब्लिश कर पाए। तो वो एक चैलेंज है। और आज जो जैसे बहुत सारे लोग, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो रिसर्च था प्लांट्स का, ये 1960s में शुरू हुआ था भारत में, और IARI दिल्ली में बहुत उस समय काम भी किया इस फील्ड में, और उन्होंने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ से आइसोलेट किए फील्ड से और जो प्लांट के एसोसिएशन के साथ, और उनको इंटरेक्ट कर उनको फील्ड में दोबारा से डाल के देखा कि क्या वो यील्ड में एनहांसमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब एक साइंटिफिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम इस तरह की स्टडीज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं, और सभी लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जैसे ही हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, या फील्ड में हम इनका एप्लीकेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो जो फायदे हैं वो हमें कम दिखते हैं। रीजन ये है कि हर एक जो खेत है या हर एक जो सॉइल है, उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जो लोकल माइक्रोबियल कम्युनिटीज है, उनका इंटरेक्शन जो हम डाल रहे हैं ऑर्गेनिज्म उसके साथ, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश ही नहीं होने देता, वो उसको वहाँ पे आने ही नहीं देता। ये इस तरह की चीज है कि आपने एक बैक्टीरिया लिया, उसको आपने अच्छे से देखा कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, उसको प्लांट को बेनिफिट कर सकता है, और अब आप उसको डाल दिया। वो आपने आइसोलेट किया था महाराष्ट्र की सॉइल से, और आपने जाके उसको डाल दिया यूपी में या हरियाणा में। तो वहां पे जब आप ऐसा करोगे, तो उससे ये हो जाएगा कि हो सकता है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश कर जाए, और हो सकता है वो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं वो उसको वहाँ पे आने ही ना दें, वो उसके साथ इतना फाइट बैक करें कि वो उसको एस्टेब्लिश ही ना होने दें। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी फील्ड एक्सपेरिमेंट। हम फील्ड में जाते हैं तो वो इनकंसिस्टेंसी आती है, यानी कि कई बार वो काम करते हैं जो बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशन है या जो जैविक खादें हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई बार ये नहीं करते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स में ऐसा नहीं करता। केमिकल फर्टिलाइजर अगर आपने नाइट्रोजन डाला है तो डेफिनेटली वहाँ पे नाइट्रोजन आएगा ही आएगा। तो वो एक मेजर डिफरेंस है केमिकल फर्टिलाइजर में और बायो फर्टिलाइजर में। लेकिन जैविक खादों का कभी नुकसान नहीं होगा, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका नुकसान होता है। उसका लॉन्ग टर्म जो आपको उसका मुनाफा है या उसका जो फायदा है वो शॉर्ट टर्म दिखेगा कि आपकी फील्ड उस साल बहुत अच्छी आएगी, क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी आएगी, यील्ड अच्छी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो है आप अगर 5-10 साल तक वो कंटिन्यूसली अगर आप यूज करते हैं तो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होने लगेगी। आपकी पीएच जो है वो या तो एसिडिक होने लगेगी या बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी, वहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा होने लगेगी, और साथ ही साथ में वो आपका जो वाटर ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट। तो ये बहुत सारा, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर आप डालते हो तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं।
जबकि आप जैविक खाद अगर कोई डालते हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप डालते हो सकता है उसका फायदा ना हो सकता है। यानी कि जैसे इनकंसिस्टेंसी में बोल रहा हूँ कि कभी उसका फायदा होता है, कई बार नहीं होता है। अगर उसका फायदा नहीं भी हो रहा है तभी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक चीज है, ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इससे नुकसान कभी भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है उससे फायदा ना, लेकिन चांसेस, अगर आपने अच्छे से रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट अगर आप यूज करते, हाँ ये जो है इस एरिया में ये वेल टेस्टेड है और वहाँ पे हमने इसके डेमोन्स्ट्रेशन किए हुए हैं और उसके बेसिस पे इसका प्रैक्टिस में हमने आया है, तो उसका मुनाफा होता ही है, उससे बेनिफिट होता ही हेलो। है। हाँ हाँ प्रवीण, इट्स गुड। एक और बताएंगे आप हमारे बच्चों को कि क्या नाम है, केमिकल फर्टिलाइजर, अभी जो बहुत सारा ऑर्गेनिक कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत सारे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर या बहुत सारी और डिजीजेज जो हैं बढ़ रही हैं, तो उनके लिए ये जीवाणुओं पे बेस्ड फार्मुलेशन कितना कितना उपयोगी, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कंसेप्ट कितना अभी इंडिया में या आउटसाइड ऑफ इंडिया कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है? बिल्कुल। तो ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर हमने सस्टेन करना है अर्थ में, तो अगर हमने पूरी पृथ्वी को अगर देखें और पूरे संसार को अगर हम देखें, तो अगर हमने अपनी सॉइल्स को बर्बाद नहीं करना है और उनसे कॉन्टिन्यूसली अच्छी क्रॉप्स हार्वेस्ट करते रहना है, तो उसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम उनका इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो कल को वो डिटीरियोरेट ना हो, डिग्रेड ना हो। तो वो डिग्रेडेशन हम कैसे बचा सकते हैं? वो डिग्रेडेशन हम माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, इनसे ही किया जा सकता है। यानी कि अगर पौधों को अगर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हमें पता लग चुका है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ना सिर्फ पौधों के लिए या फिर खेतों के लिए ही हार्मफुल हैं, वो वहाँ उस इकोसिस्टम में या उस इन्वायरमेंट में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो उसके लिए भी हानिकारक है। वो उस इकोसिस्टम में रहने वाले जीव जंतु जितने भी हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो जो वहाँ का एक्वेटिक डाइवर्सिटी है, वो उसको भी इम्पेक्ट करती है। यानी कि अगर आपने खेत में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन आप कॉन्टिन्यूसली डाल रहे हो और साथ में ही कोई नदी जा रही है, आप देखोगे कि अगर आप फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कॉन्टिन्यूसली वहां पे डाल, तो वो लीच आउट होके या पानी के साथ बह के नदी में जाएगी। नदी में जाएगी तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा शैवाल ग्रो करने लगेगा और कई जगह एल्गल ब्लूम्स या साइनोबैक्टीरियल ब्लूम हो जाते हैं। अगर वो कोई झील है या कोई तालाब है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, वहाँ का मतलब वो पानी जो है वो साफ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें होने लगेंगी। तो यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर ना सिर्फ खेतों को ही खराब कर रहा है, वो वहाँ पे आसपास की सारी चीजों को बर्बाद करता है। तो उससे बचने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव, अब ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? एक, आप फार्म यार्ड मैन्योर्स, जो कि हम बहुत पहले से ही इंडियन जो सिस्टम था एग्रीकल्चर का, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। देखिए, एक खेती बाड़ी जो करते थे पहले, उनके घरों में जानवर भी होते ही थे, और वो जानवर जो थे उनका जो गोबर था और या उनका जो वेस्ट होता था उसको हम प्रोसेस करते थे और उससे हम फार्म यार्ड मैन्योर बनाते थे। तो वो फार्म यार्ड मैन्योर जो थे हम दोबारा से, तो एक पूरा साइकिल था। यानी कि खेतों से जो हम हार्वेस्ट करते थे अनाज, इंसान खाते थे, उसका जो चारा बचता था वो जानवर खाते थे, और उससे उन जो जानवरों का जो वेस्ट होता था वो हम दोबारा से प्रोसेस करते थे और उसको हम दोबारा से खेत में डालते थे। यानी कि पूरा का पूरा एक चक्र था। अब केमिकल फर्टिलाइजर ने उस चक्र को तोड़ दिया। केमिकल फर्टिलाइजर किसी फैक्ट्री में बन रहा है और वो हमारे किसानों के पास जा रहा है और किसान उसको उठा के वहां पे डाल रहा है। वहां पे वो इनपुट हो रहा है नाइट्रोजन का या केमिकल फर्टिलाइजर्स का, न्यूट्रिएंट्स का, और उसकी वजह से वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो साइकिल है अगर हम दोबारा से एस्टेब्लिश करें तो वो एक तरीका हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि प्योरली जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, अगर हम उसको एफिशिएंट बनाना है तो वहाँ पे हमें एफिशिएंसी लाने के लिए
इस तरह के सूक्ष्म जीवों का इंट्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा जो उस सिस्टम को फास्ट करें, उसको जल्दी करें। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे फार्म यार्ड मैन्योर जो बनना है उसका एक प्रोसेस होता है। वो 2 से 3 महीने अगर आपने जानवरों के वेस्ट को रखा है, वो डिकम्पोज होगा, तब जाके उसकी फार्म यार्ड मैन्योर बने। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सोल्यूशन वहाँ पे डाल सकते हैं। तो किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालें जो स्पीड अप करें फार्म यार्ड मैन्योर प्रोसेस को, या फिर उसके अलावा हम फार्म यार्ड मैन्योर को एनरिच करें या फोर्टिफाई करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो सिर्फ जो न्यूट्रिएंट्स उस फार्म यार्ड मैन्योर में है, उसके अलावा भी वो जब सॉइल में जाए तो वो वहाँ पे और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे वो प्रोवाइड करे, वो और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे उसको अवेलेबल कराए, चाहे वो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन की तरह से करे, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह से करे, या कोई और न्यूट्रिएंट को वो वहाँ पे सॉल्युबलाइज करके उनके लिए मिनरलाइज करके प्लांट्स को दे। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनील। अब आपके पास क्वेश्चन जो ऑडियंस की तरफ से हो या आप लोगों के जो क्वेश्चन हो, आप प्लीज डॉक्टर राही से वो रेज कर सकते हैं, है ना? अच्छा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा अभी तक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर को लेकर के। एक्चुअली हम सारे लोग सुनते आ रहे हैं ना कि जैविक खादों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, किसानों को जो है ये समझ में आ रहा है कि हाँ क्यों, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रियली डेंजरस, पेस्टिसाइड्स आर रियली डेंजरस, वी हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव। तो ये एक तो है, लेकिन एक बड़ी चीज जो फील्ड में लोगों को देखने को मिलती है वो ये है कि इकोनॉमिकल बेनिफिट, मतलब इकोनॉमिकल बैलेंस कैसे बनता है। कि जैसे जो हम बोल रहे हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए या फिर जो जैविक या फिर माइक्रोब्स के बेस्ड पे जो प्रोड्यूस मार्केट में अवेल कराए जा रहे हैं, उनका इकोनॉमिकल बैलेंस कैसा है, मतलब अगर कंपेयर करें तो क्या ये फिजिबल है किसानों के लिए? जी बिल्कुल। हाँ, तो इसको अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि हाँ ये एक इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही हम जा रहे हैं, जाने की बात करें कि हम जमीनों को बचाएंगे, हम मिट्टी का संरक्षण करेंगे और वो लंबे समय तक हम उनका इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ ही साथ में हम ये नहीं प्रमोट कर सकते कि आप शॉर्ट टर्म अपने नुकसान झेलें। यानी कि किसान को अगर वो जैविक खादें यूज कर रहा है तो उसको या तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उसके लिए, या उसको यील्ड्स में लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये बिकॉज इकोनॉमिक्स ड्राइव्स द बिजनेस, राइट। अगर उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, अगर उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है किसान के लिए, या जो भी इस तरह की अप्रोचेस अडॉप्ट करवाना चाह रहा है, चाहे वो संस्थान है चाहे वो सरकारें हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल नहीं है मॉनेटरी से, मतलब पैसों का नुकसान हो जाएगा उनका, तो वो कोई नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए इस तरह की जो ये तकनीकें हैं ये इस तरह से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है या इस तरह से डेवलप हो रही है। देखिए, आप एक केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो आप बैग लेते हैं, या उसका जो पर केजी अगर उसके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो अगर हम कैलकुलेट करें और उसी के कंपैरिजन में हम कैलकुलेट करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टिवेट करने में और ग्रो करने में और फील्ड्स में लाने तक का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें कितना इनपुट ऑफ मनी जो है वो जा रहा है, तो वो बहुत कम होता है इन केस ऑफ माइक्रोवेव फॉर्मुलेशन। हाँ, मैं इसमें अभी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश सिस्टम है, उसमें हम कुछ नई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें बोलेंगे कि हाँ इसमें रिसर्च का इनपुट इतना नहीं है। लेकिन जो माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन अगर तो बन नहीं हुई या बन चुकी है सपोज फॉर्मुलेशन, तो उनको मल्टीप्लाई करना और डिलीवर करना वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना केमिकल फर्टिलाइजर्स पड़ते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन के भी नुकसान होते हैं, उनके भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट पे भी और अदरवाइज, और बहुत सारी सरकारें उसको सब्सिडाइज करती हैं। आपने सुना ही होगा, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है और वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज किसान लेके जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने अभी भी काफ़ी सारी सब्सिडीज दे रखी हैं केमिकल फर्टिलाइजर से। तो अगर इस तरह का एक सब्सिडी वाला प्रोग्राम बायो फर्टिलाइजर्स के लिए भी चले
और गवर्नमेंट इसके तरफ भी सोचे, क्योंकि इससे दोहरा इससे फायदा होगा। एक, किसानों की खेती बाड़ी की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और दूसरा, उनका जो फील्ड है उसका लॉन्ग टर्म में डिटीरियरेशन नहीं होगा, यानी वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम जाएंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से एज इज हमें लगता है कि शायद से ये महंगा सौदा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये महंगा सौदा नहीं है। इससे फार्मर्स को रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा मिल सकती है। जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं, चाहे वो शहरों में आप देख लीजिए, आज भारत के शहरों के लोग भी और इवन गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, और वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को परचेज करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन तो जो केमिकली जो फर्टिलाइज हुए हैं। तो उसके लिए वो 5 रुपए या 10 रुपए वो अधिक भी देने के लिए तैयार है पर किलो के हिसाब से अगर देखें, तो वो एक एडिशन हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आपकी यील्ड में जो है आपको 10% का लॉस हो गया, लेकिन आपका जो रिटर्न है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी विच यू आर गोइंग टू गेट, वो अगर 20% ज्यादा हो जाता है, तो इन द नेट फॉर्मेट यू विल बी बेनिफिटेड 10% मोर। यू आर नॉट गेटिंग लेस मनी बट यू आर गेटिंग मोर मनी 10%, बिकॉज आपका प्रोड्यूस जो है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही फायदे का मुझे लगता है कि ये मामला है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें हमें नुकसान होगा, फार्मर्स को नुकसान होगा, क्योंकि इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन उनको अप्लाई करना भी बहुत सेफ होता है। उसमें मतलब किसान को बहुत ज़्यादा बड़े मतलब पेस्टिसाइड जब हम स्प्रे करते हैं तो किसानों का खुद का भी तो आप देखिए उसका कितना नुकसान हो सकता है, और होता भी है, उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें लॉन्ग रन, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मिलेगा किसान को, तो बीमारियां कम होगी, उसका खर्चा बीमारियों का बचेगा, उसका जो प्रोड्यूस है उससे उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है यील्ड का लॉस 10% हो, लेकिन उसका यील्ड का जो ओवरऑल उसका जो रिटर्न है प्रोड्यूस का, वो उसका 20% ज़्यादा और होता है। अगर आप देखें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में और नॉर्मल प्रोड्यूस में 10 to 20% का डेफिनेटली उसमें डिफरेंस रहता है। तो वो 5 से 10 रुपए वो एक्स्ट्रा में ही दिखता है, वो कभी भी सस्ता नहीं दिखेगा केमिकल प्रोड्यूस। यस, काइंड ऑफ मतलब हम एग्री करते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ की मार्केट में देखते हैं, अगर कोई चीज ऑर्गेनिक करके बेचा जाता है तो रफली उसका कई बार तो 1.5 गुना से 2 गुना तक प्राइस ज्यादा होता है। तो लेकिन जैसे जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगा रखे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन जिन क्रॉप्स को मिल रहा है उसके लिए बड़े रेगुलेशंस बड़े सख्त हैं। मैं यहाँ पे एक चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेगुलेशन से एक चीज याद आई कि रेगुलेशंस ये है कि आपके पास एक बड़ा एरिया खेत का होगा और वहां पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और बड़ा एरिया होगा तो भी आपको पूरे खेत में पैदा हुआ प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग तो इनऑर्गेनिक तरीके से पैदा कर रहे हैं। तो वो जो है छोटे लेवल के जो किसान हैं उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो नहीं यूज कर सकते। मैं स्टूडेंट्स को ये एक चीज ये मतलब बोलना चाह रहा कि ये एक्चुअली हो आप ये बता सकते हैं उन्हें कैसे ऐसे होता है कि हम तो नहीं डाल रहे हैं फिर भी हमारा पूरा खेत ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है, ऑर्गेनिक वे में खेती की जा रही है, नहीं माना। ये एक विडंबना ही बोल सकते हैं हम कि अगर इस तरह के सिस्टम जो है ये अगर हम अकेले मतलब, अब इंडिया में क्या है कि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हैं, हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, तो बहुत छोटे छोटे लैंड मासेस हैं उन लोगों के पास, और हम उसी से बहुत सारी फैमिलीज जो हैं 100% मतलब उनका डिपेंडेंसी खेतों पे है। तो कोई भी नहीं चाहता है कि उससे उनको थोड़ा सा भी नुकसान अगर उनको या वो होगा तो उससे बहुत मतलब उनकी आजीविका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक मेजर एस्पेक्ट है। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा जो आपका आसपास के जो खेत अगर उनमें लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उनका लीचिंग होता है, अब पानी लग रहा है खेतों में तो वो पानी के साथ वो बह के आएंगे,
तो ये सारी चीजें उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में डेफिनेटली उसका वो रहेगा। लेकिन इसको आप अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे कि जहाँ पे हम ऑर्गेनिक की तरफ बिल्कुल नहीं हो रहे हैं कि हाँ 100% ऑर्गेनिक हो जाना, और एक होता है एक इंटीग्रेटिव फार्मिंग, यानी कि अगर हम किसानों को इतना अवेयर करें कि ठीक है आप ऑर्गेनिक शायद से नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इंटीग्रेट में क्या करेंगे, आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, लेकिन उनका डोजेज जो है वो आप 50 से 75% तक कम कर सकते हैं बाई यूजिंग बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। तो यानी कि अगर आप जैविक खादों का थोड़ा थोड़ा उसमें एडअप करें और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इनपुट जो है वो कम करें, और ये बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के, जहाँ पे इस तरह के लैंड मासेस हैं जहाँ पे आप सही में आप आइसोलेटेड नहीं हैं और लोगों से, और आपका सर्टिफिकेशन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे खेतों के लिए या इस तरह के क्षेत्रों के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की अप्रोच लाना चाहिए, और धीरे धीरे हमें अपना केमिकल फर्टिलाइजर का इनपुट कम करना चाहिए। अच्छा, अब केमिकल फर्टिलाइजर का इनपुट कम करना मतलब ये नहीं है कि आपने यील्ड पे लॉस देना है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ पे हमने देखा है, मैंने खुद किए हैं, कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स हम डाल रहे हैं साथ में, और केमिकल फर्टिलाइजर्स के हमने 25%, 50% और 70% इनपुट डाला, और 100% का कंट्रोल रखा। तो हमने देखा है कि 50% पे जब हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और साथ में उसमें बायोइनोकुलेंट भी डाल रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 100% जो केमिकल फर्टिलाइजर हम जितना डालते हैं तो उसके बराबर है। यानी कि हम अपना केमिकल इनपुट जो है, केमिकल फर्टिलाइजर का इनपुट जो है वो 50% कम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। यानी कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, उल्टा आपकी सेविंग हो जाएगी जो आप उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल। तो ये एक तरीका है ऐसी चीजों जगहों पे करने का। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इस तरह का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का अप्रोच आप लाते हो, तो आपके आसपास वाले जो फार्मर्स हैं उनको भी उससे एनकरेजमेंट मिलता है कि इसके खेत में फसल जो है वो इतनी अच्छी। जब आप ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हो और बायो फर्टिलाइजर आप डालते हो, तो आपका खेत का एक विजिबल इफेक्ट आता है, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स वाले जो खेत हैं वो देखने में उनका कलर और उनका जो प्रोड्यूस है उसका जो मतलब देखने में ही आपको वो फर्क लगेगा। तो लोगों को एक उससे भी एक एनकरेजमेंट मिलती है, इनका प्रोड्यूस इतना अच्छा क्यों आ रहा है, यानी कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को के एडिशन को कम कर देते हो। यानी कि अगर कोई सपोज कोई सब्जी का कल्टीवेशन कर रहा है या कोई कोई किसी फ्रूट का कल्टीवेशन कर रहा है, तो जो स्वीटनेस है और जो उसका टेस्ट है और जो सब्जियों का जो क्रंचीपन है, तो वो उसमें ज्यादा दिखेगा, उसका कलर जो है वो और ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। तो यानी कि आप शायद से इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही आप मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रोड्यूस क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, और धीरे धीरे आसपास के किसान भी शायद से इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आए। और आप कोई भी सिस्टम से, अगर आपने जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अभी हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम बोल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर सब कुछ डाल, उससे एकदम ऑर्गेनिक में आ जाना, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जाने के लिए हमें एक बीच का रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो बीच का रास्ता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। यानी कि आप शुरू कीजिए 50% केमिकल फर्टिलाइजर्स आप कम कीजिए, और 2-4 सालों में या 4-5 सालों में आप 25% तक लाइए, और धीरे धीरे आप जीरो करें। तो उससे क्या होगा कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी देख के ये लगेगा कि हाँ ये चीज जो है इसको नुकसान तो हो नहीं जा रहा है, लेकिन ये इसका प्रोड्यूस जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ में ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के खर्चे को भी अपना कम कर रहा है। तो वो सब चीजें जब हम करने लगेंगे तो अपने आप ही एक जन चेतना भी बनती है, लोग एक दूसरे को देख के समझते हैं कि हाँ ये चीज करने से शायद से बेनिफिट होता है। आपका प्रोड्यूस जब आप मंडी में उसको बेचने जाएंगे तो उसका जाहिर सी बात है उसका अलग से शायद से 2 या 4 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं फार्मर को, तो वो एक इंडिकेशन होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें जो बीच का रास्ता है कन्वेंशनल टू ऑर्गेनिक फार्म, वो इस टाइम सोचना चाहिए, और वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक अप्रोच है जिसमें हम स्लोली स्लोली वी कैन रिड्यूस द इनपुट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देन वी कैन प्रोसीड टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर।
इसके रितिका दुबे से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैं क्वेश्चन देख रहा था, आपने उसका आंसर दिया। रितिका का क्वेश्चन था कि मानर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या वो हैं। तो मानर्स लाइक आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है और फर्टिलाइजर्स लाइक रिफाइंड एलोपैथिक मेडिसिन है। तो ये आप समझ सकते हो। मानर, अभी डॉक्टर राही ने कहा मानर जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप कह लो, या जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स है, दोनों का कंबाइंड एफर्ट, कंबाइंड जो एप्लीकेशन है वो आपके इकोसिस्टम को बचाएगा या धीरे धीरे शिफ्ट करने में मदद करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं होगी। ये आपके क्वेश्चन का। एक और आपने किसी ने क्वेश्चन का व्हाट इज द इनाकुलेंट, इनाकुलेंट क्या होते हैं। तो जो हमारे जीवाणु हैं, फंजाई हैं, या और बहुत सारे जो उन पे बेस्ड फार्मूलेशन है जो हम इनाकुलेट करते हैं, किसी सिस्टम में डालते हैं कल्टीवेट करके, या पहले लैब में या इंडस्ट्री में जब उसे हम कल्टीवेट करेंगे जीवाणु को लार्ज स्केल पे या बड़े पैमाने पे फर्मेंटर में जाके 1000 लीटर या 2000 लीटर या 5000 लीटर में, और फिर वो उस पे बेस्ड जो फार्मूलेशन है वो इनाकुलेंट कहलाता है। जब हम उसे सॉयल में डालते हैं तो सॉयल इनाकुलेंट होता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द लाइक स्टूडेंट और लाइक फैकल्टी? एक क्वेश्चन और था पंकज जी से, आई थिंक वो डॉक्टर राही जी ने मैं ऑलरेडी इसका जवाब देना कवर। चाहूँगा सुनील जी, अगर आप मुझे मौका दें। तो हाउ फिजिबल इज रिप्लेसिंग केमिकल फर्टिलाइजर, आर देयर एनी इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट? यस, सो अभी जैसे मैंने बताया कि ये हो सकता है, किया जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी क्रॉप्स, मतलब कि क्रॉप की जो यील्ड है उसका नुकसान झेले बिना धीरे धीरे हम शिफ्ट कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के भी इसमें इनिशिएटिव धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें इसके लिए बिल्कुल ही वो आंखें मूंद के बैठी हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। उनको, सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है केमिकल फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी के रूप में। और दूसरा, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स हैं या बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ये एक हमारा जो बोलते हैं देश का, किसी भी देश का, जिसको इंपोर्ट करना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइजर अपने खाना उगाने के लिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कितना अपना जो विदेशी जो हमने रिजर्व्स होते हैं, मुद्रा रिजर्व, वो हमें उसमें खर्च करने पड़ते हैं। तो सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो इस पे बहुत समय से, बहुत सालों से अलग अलग पॉलिसीज बनाती रहती हैं और प्रमोट करती रहती हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन। तो इसके लिए वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है या ऑर्गेनिक मैन्योर्स को यूज़ करने के लिए जो प्लांट्स लगाते हैं लोग, उसके लिए उनके लिए सब्सिडी देती है, उनको ट्रेनिंग देती है। उसके अलावा बायोफर्टिलाइजर्स प्लांट लगाने के लिए या बायोफर्टिलाइजर यूनिट्स लगाने के लिए भी सब्सिडी और लोन्स मिलते हैं और उसको भी वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। और इस तरह के पूरे एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए ट्रेनिंग की जाती है। हालांकि ये इससे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि हो पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि लोगों को ये एक बिजनेस ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत एक ऐसा देश बन रहा है धीरे धीरे जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और हम सिर्फ अपने देश की ही बायोफर्टिलाइजर नीड्स को पूरा नहीं करते हैं, यहाँ से बहुत सारे अन्य देशों, और मैं बताना चाहूँगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देशों में अलग अलग छोटे छोटे देश हैं। अभी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया था 20वीं सदी बीच में, उस तरह का एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने वाला है या आ रहा है। और आपने शायद से, अगर आप लोग सामान्य ज्ञान या किताबें या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो इस तरह के प्रिडिक्शंस हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में स्लो हो जाएगा, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। बाकी एशिया में अब हमारा जो देश है, धीरे धीरे हम लोग भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक भारत की ग्रोथ जो है वो एक प्लेटो पे पहुंच जाएगी और उसके बाद हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे हमारी पॉपुलेशन। और चाइना की भी बहुत जल्दी वो है वो
डिक्लाइन करना शुरू करेगी। और यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में तो डिक्लाइन हो ही रहा है। तो सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इंक्रीज देखा जाएगा। तो अब उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए तो वहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स, एग्रीकल्चर एक तरह से इस टाइम एक एक्सपेरिमेंटल पॉट जिसको हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बड़े सारे यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनाइजेशन थी पहले से, और स्पेशली फ्रांस की, तो उनके बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं, और वो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चला रहे हैं कि वो वहाँ पे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे, वो जिस तरह से भारत में हमने सीधा सीधा केमिकल फर्टिलाइजर्स को एकदम अपना लिया, और हमारे पास शायद से हमारा देश उस टाइम डिस्ट्रेस में था, हम लोग बाहर से अपना अनाज मंगा रहे थे, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम यहीं पे अपना खाना और अनाज यहाँ पे उग जाएं। तो लेकिन वहाँ पे वो धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं, बहुत सारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर्स इंडिया में डेवलप करते हैं और वहाँ की देशों को वो प्रोवाइड करते हैं, और वो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में देते हैं और बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होते रहते हैं, और हम लोग उनको जानकारी और माइक्रोबियल कल्चर प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि वो अपने फॉर्मुलेशन वहाँ पे बनाएं। तो ये भारत सरकार का एक और इनिशिएटिव बहुत जल्दी आने वाला है शायद से, कि जहाँ पे भारत सरकार एक ऐसा पॉलिसी बना रही है जिसमें आप अगर अपने खेत में सपोज 1 क्विंटल अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपको 5 से 10 किलो जो है वो बायो फर्टिलाइजर के साथ में डालना पड़ेगा। यानी कि वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो वो उसको वहाँ एक मैंडेटरी बनाने वाली, यानी कि आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर खरीदोगे तो आपको ये बायो फर्टिलाइजर भी खरीदना ही पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट का ये एक मतलब फोर्सफुली वो एक वो करने वाली है जहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ जैविक खाद आप डालें ताकि आपकी खेतों की एटलीस्ट लाइफ जो है वो बची रहे, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटलीस्ट रहें, जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटलीस्ट वो वहाँ पे रहें कुछ हद तक। अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे माइक्रो। दिस इज रियली और वेरी कोई नाइस क्वेश्चन है आपकी तरफ से? जी, एक पंकज जी का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट्स के लिए एक कैरियर इंफॉर्मेशन पे आएंगे। ओके। डॉक्टर राही जी आप पढ़ सकते हैं क्या पंकज जी का क्वेश्चन, या मैं पढ़ूं? आप पढ़ दीजिए। जी, उन्होंने पूछा मेनी टाइम्स फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट लेटेस्ट रिसर्च इन द फील्ड। ओके, सो आल्सो रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट आर वेल connected with farmers. Yes. What is your thought on this? Right. How to connect research and farmers? जी, yeah. हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि जो एडवांस रिसर्च होती है, एडवांस रिसर्च वो होती है जो अभी हो रही है, यानी कि उस पर लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोबायोम और सिंथेटिक कम्युनिटी जो है उस पर रिसर्च अभी हो रही है, वो एडवांस स्टेज पे है, मतलब बहुत अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, यानी कि उससे अभी टेक्नोलॉजीज बनी नहीं है, टेक्नोलॉजीज जो है वो अवेलेबल नहीं, ये टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। लेकिन इससे अलावा जैसे कि जो सिंगल और कंसोर्शियम बेस्ड अप्रोच, सिंगल इनोकुलेंट और कंसोर्शियम बेस्ड अप्रोच बायो फर्टिलाइजर, उस पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने एक कृषि विकास केंद्र केवीकेज जो बोलते हैं, पूरे इंडिया में आईसीआर का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट इज टू रीचिंग पीपल, बट इन सर्टेन स्टेट्स वेरी गुड। राज्यों में बहुत अच्छा है उनका केवीकेज का जो नेटवर्क है, और वो किसानों के साथ डायरेक्ट उनके इंटरेक्शन होते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे अब ये बोलते हैं सिस्टम में एफिशिएंसी नहीं होती है हमेशा कि वो एकदम 100% काम करे, लेकिन कुछ कुछ स्टेट बहुत ही अच्छा एफिशिएंट सिस्टम है, कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा एफिशिएंट सिस्टम नहीं है केवीकेज का। और कृषि विकास केंद्र जो है उनका रोल यही है, जो भी तकनीकें डेवलप हो रही हैं या हो चुकी हैं उनको वो किसानों तक लेके जाए, और उनको उसके माध्यम से वो उनको नई टेक्नोलॉजी से अवेयर भी करें, और उनको नई टेक्नोलॉजी की डेमोस्ट्रेशन भी। सिर्फ ये अवेयर करना ही नहीं है, उनको लोगों को कैसे
अडॉप्ट करना है, यानी कैसे उनका उपयोग करना है उन तकनीकों का, वो भी वो दिखाते हैं, करके दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स में, और उनके खेतों में वो फार्मर फील्ड में भी एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट वही है कि systems are not 100% functional most of the time. During मेरी खुद की PhD के टाइम मैंने खुद इस तरह के फार्मर्स फील्ड में एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स करे थे, और हमने देखा कि फार्मर्स को उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ। और फार्मर्स, मैं जब PhD करके वहाँ से नई जगह में आ भी गया, तब भी वो मुझे फ़ोन कॉल करते रहते थे कि क्या हमें वो बायो फर्टिलाइजर्स मिल सकते हैं, हम दोबारा से ट्रायल लगाना चाहते हैं। लेकिन एक PhD स्टूडेंट का काम होता है कि उसने काम कर दिया, उसके बाद वो मूव करता है, तो वो बीच में, तो उन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि हाँ, वहाँ पे एक कनेक्शन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कनेक्शन एक वाइब्रेंट कनेक्शन होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ हमने बंदे बिठाए हुए हैं, बट वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो रियली वर्क, दे आर रियली वर्किंग, उनका असेसमेंट, उनका जो फीडबैक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे देश की हमेशा से ये एक वो रही है, प्रॉब्लम रही है कि सिस्टम्स हम बहुत अच्छा बना देते हैं, बहुत अच्छे सिस्टम हम एस्टेब्लिश कर देते हैं, बट वो ग्राउंड पे जो उनका फंक्शनैलिटी है हम उसको प्रॉपर्ली असेस नहीं करते हैं, और उसकी वजह से जो है इनएफिशिएंट सिस्टम हम बिल्ड कर देते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। आई थिंक पंकज जी के क्वेश्चंस का बहुत ही सटीक आंसर था ये, और बहुत इंफॉर्मेटिव था। एक लास्ट क्वेश्चन जो बीच में छूटा रह गया था, चूंकि हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की, या जनरली जो भी माइक्रोब्स के एप्लीकेशंस की हम बात किए हैं अभी एग्रीकल्चर फील्ड में, काजल जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कई सारे क्वेश्चन थे उनके, एक क्वेश्चन हम लेंगे जो था कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, कैसे माइक्रोब्स का यूज हम एनर्जी के फील्ड में कर रहे हैं। हाँ, ये बल्कि बायो एनर्जेटिक्स जो है ये डायरेक्टली बल्कि मैं एग्रीकल्चर से तो नहीं लिंक कर रहा हूँ, लेकिन बायो एनर्जेटिक्स या बायोफ्यूल और बायोसेल्स या मतलब माइक्रो यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये इस फील्ड में भी काफ़ी रिसर्च हो रही है, और बहुत सारे लोग इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव हमेशा ढूंढने की कोशिश होती है कि जैसे हमें पता है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, दे आर नॉट गुड, उनको हार्वेस्ट करते रहना उसका इकोलॉजिकल सिस्टम पे भी बुरा असर पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसेज का हमें पता है कितना वो होता है, तो ये सब चीज़ें हैं उसके साथ। तो इसलिए बहुत सारी इस पे रिसर्च हो रही है, जहाँ पे लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट अलग अलग तरह के सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं या उस पर। तो ये अगेन ये जो इस तरह की रिसर्च है ये बहुत एडवांस लेवल पे है। नॉट समथिंग you have the technologies, but yes, some people have demonstrated certain technologies, कुछ लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं जहाँ पे उन्होंने ये एग्जिबिट किया है या शो किया है कि आप चाहे नैनोबैक्टीरिया को ले लो या चीजें ले लो, तो उन्होंने उनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल में लाए। तो इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, और ये एक बहुत एरिया है रिसर्च के लिए, फ्यूचर के लिए, बिकॉज ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर रियली रिक्वायर्ड एंड पीपल आर लुकिंग फॉर दिस। काजल के इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा राही सर के उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत सारे अपने गांव में जो अभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, जिसे आप गोबर गैस कहते हो, जो काऊ डंग से बायोमीथेन प्रोडक्शन है, जिसे आप लाइट के लिए या बायोफ्यूल्स के लिए या कुछ कुछ कार चलाने के लिए यूज हो रही हैं, जिसे मेथेन मेन कंपोनेंट है बायोगैस का। दूसरा जो बहुत सारा वर्क हो रहा बायो इथेनॉल पे हो रहा है, बायोडीजल पे हो रहा है, या आप बैक्टीरियल फ्यूल सेल का, जैसे डॉक्टर राही ने बताया, बैक्टीरियल फ्यूल सेल पे काम हो रहा है कि बैक्टीरिया को एज ए इलेक्ट्रोड या वो यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पे करने के लिए, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल की तरह काम हो रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है बहुत सारा। यूएस का जो आप देखेंगे ये पेट्रोल है या डीजल है, उस पर 10% इथेनॉल मस्ट है, ऐड किया जाता है। ये सारे ग्रीन एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे बायोडीजल है, बायोइथेनॉल है, बायोगैस है, या इलेक्ट्रिसिटी है, या हाइड्रोजन है, बायोब्यूटेनॉल है।
ये सारे बायोफ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। और बहुत सारा, जैसे डॉक्टर राही ने बताया, इसमें बहुत सारी एक्टिव रिसर्च चल रही है और इंडिया भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्चुअली अभी हम लोग जो है इसी फील्ड पे आने वाले थे सर जी, कि आपने याद यहाँ पे अपने साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चूंकि आप सभी लोगों ने बताया कि इंडिया में बहुत एडवांस लेवल की रिसर्च में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, बहुत सारी लैब्स, बहुत सारे जो है इवन इंडस्ट्री लेवल के R&D सेंटर्स जो है जुड़े हुए हैं इस तरह के रिसर्च के लिए। तो मैं चाहूंगा कुछ कमेंट आप लोग जो कैरियर पर्सपेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो साइंस के हो या एग्रीकल्चर के हो या किसी भी साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशन के हो, क्या दो चीजें, पहली तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं इंडिया में कैरियर के हिसाब से, और दूसरी चीज क्यों इन स्टूडेंट्स को जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी यस सर, डॉक्टर राही सर। तो जो ये जितने भी मैं अभी तक हम लोगों ने बात करी, इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है या हुई भी है, तो इसके लिए सही में ये जो टेक्नोलॉजीज जो बनती हैं, तो टेक्नोलॉजीज को मार्केट में लाने के लिए और मार्केट में सस्टेन करने के लिए मैन पावर की हमेशा से ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी। और जैसे जैसे हमारी जो देश की रिक्वायरमेंट्स वो चेंज या जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स वो चेंज, तो उस तरह का मतलब जो स्कोप ऑफ जॉब्स है वो भी चेंज हो रहा है। यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होगा, और वो हो रहा है और वो होना भी चाहिए, तो इस सेक्टर से जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, इसका ये तात्पर्य निकाला जा सकता है। और डिमांड्स कहाँ बढ़े? डिमांड बढ़ेंगी बायोलॉजिकल। जैसे मैं बता रहा हूँ कि भारत सिर्फ अपने ही देश की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है। आज हम मतलब बायोफर्टिलाइजर के क्षेत्र में या इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर करते हैं। हम यहाँ से सिर्फ अफ्रीका नहीं, सिर्फ अपने एशिया में हम ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत सारे बायोफर्टिलाइजर और बायोमेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो देश का जो अगर देखा जाए रिक्वायरमेंट, तो वो उस तरफ जैसे शिफ्ट होगा, जैसे ऐसी पॉलिसीज और ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली अप्लाई होंगी, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। और जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली इन R&D, सिर्फ रिसर्च में ही नहीं निकलेंगी, वो प्रोडक्शन यूनिट्स भी चाहिए होंगे लोगों को। बहुत जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लोग गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज तरीके से लोन भी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने बायो फर्टिलाइजर प्लांट लगा सकें या ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्म बनाने के प्लांट्स लगा सकें, तो वो एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके साथ ही साथ में उनकी मार्केटिंग, उनका उपयोग करने वाले, तो ये बहुत, और उसका पूरा सप्लाई चेन बनता है। जब ये पूरा एक सप्लाई चेन बनता है तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर जो सेल कर सकता था, तो जरूरी नहीं है वो बायो फर्टिलाइजर भी सेल करता है, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, वो बहुत अलग है। जैसे मैं बता रहा था कि एक प्लांट के साथ एक तरह के ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन होती है, तो अगर वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो फार्मर को कैसे वो कर पाएगा, कन्विंस कर पाएगा ये वाला अगर आप डालोगे तो आप एक साल अगर उसमें गलती से सपोज किसी ने गलत है बायो फर्टिलाइजर बेच भी दिया, तो फार्मर तो दूसरे साल उससे नहीं खरीदे। तो वहाँ पे जो बायोलॉजिकल फील्ड जिसमें बच्चे ने पढ़ा है और वो मार्केटिंग में है बायो फर्टिलाइजर्स की या फार्म या ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक इस तरह के फील्ड, तो उनके लिए एक एज रहेगा, उनके लिए ये मार्केट रहेगा हमेशा कि वो वहाँ पे अपना जो एक्सपर्टाइज है, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ के या बायो फर्टिलाइजर के रिसर्च मास्टर्स करके या BSc करके, तो उनके लिए वो एक एडिशनल एज रहेगा। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। इसके अलावा रिसर्च में तो है ही रिसर्च, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ ये बहुत एडवांस स्टेज पे इस पे रिसर्च चल रही है। बहुत सारी
रिसर्च होनी बाकी है। सिंथेटिक कम्युनिटीज की आज हम बातें कर रहे हैं, हो सकता है 5 या 10 साल के बाद सिंथेटिक कम्युनिटीज बना के लोग मार्केट में लाने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज लाएंगी इस क्षेत्र। तो खादों में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। जिस तरह से अभी लोग एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स पे बहुत जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सस्टेनेबल होगा, क्योंकि एक्वापोनिक्स तो फिर भी इसमें, क्योंकि जहाँ पे आप सिर्फ केमिकल्स डाल रहे हो, आप न्यूट्रिएंट्स के सॉल्यूशन बना के उसमें डाल रहे हो, आप प्लांट्स को कोई भी नेचुरल कोई चीज़ दे ही नहीं रहे हो। सब जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिंथेटिक है, तो वो बहुत देर तक नहीं चलने वाला। और इससे जैसे मैं बता रहा था कि प्रोड्यूस जो है, प्लांट प्रोड्यूस जो है, वो सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरता है, वो हमारे लिए सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं देता है, वो साथ ही साथ में अपने अच्छे बैक्टीरिया भी इंट्रोड्यूस करता है हमारे अंदर, और अच्छे बैक्टीरिया होने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। अगर हम उनको बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे, अगर हम अपने माइक्रोबियल इंटरेक्शन जो हमारे नेचर के साथ हैं, अगर हम कट अप कर देते हैं, हम सुपर हाइजीनिक हो जाते हैं, हम माइक्रो फ्री होने की कोशिश करते हैं, तो हमें बीमारियां होने के चांस, तो ये बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस एरिया में रिसर्च में एक अच्छा करियर है। इस एरिया में रिसर्च के साथ साथ प्रोडक्शन में बहुत बड़ा ये आने वाला है, और ये होने वाला है और हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, छोटे छोटे टाउन्स में, छोटी छोटी जगहों में आप अपने बायो फर्टिलाइजर यूनिट्स लगा रहे हैं, और उससे वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छा रिटर्न बहुत अच्छी हैं। तो ये एक अच्छा करियर बन रहा है। ओके, आई थिंक जो स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं उन लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है करियर पर्सपेक्टिव्स के लिए के हिसाब से, और सही में बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखें अपने करियर के लिए भी, अपने एजुकेशन के लिए भी। इससे जो है मतलब यही है ना कि हम आज का तो युग ऐसा आ गया, साइंटिफिक कम्युनिटी ऐसी आ गई कि आपके नैरो फील्ड का नॉलेज जो है कई बार जो है समुचित नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता कि आप आगे जो है सस्टेन कर सके इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो करियर के हिसाब से भी स्टूडेंट्स को अलग अलग चीजें जो है जाननी जरूरी है। और लास्ट जो हमारी मेरी तरफ से क्वेश्चन है ये, चूंकि हम यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन शुरू से ही हम लोग जो है कोशिश किए हैं कि रूरल पार्ट ऑफ इंडिया जो लेस इन्फॉर्म्ड है, लेस अवेयर है, वहां पे अपना जो है अपने तरफ से जो कर सकते हैं कर सके, पार्ट टाइम में ही सही। हम लोग जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें भी हमारा एक मेजर जो अट्रैक्शन होता है वो एग्रीकल्चर को लेकर के होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो चीज है, अगर जो एग्रीकल्चर के फील्ड है अगर हम उससे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोकल जो ऑडियंस है या लोकल लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर हमेशा रहा है कि हम लोग जो है अपने इवेंट्स में किसी ना किसी जो है एक्सपर्ट को बुलाएं, और जो है थोड़ा बहुत जो है चाहे वर्कशॉप के माध्यम से, चाहे जो है सेशंस के माध्यम से उनको अवेयर करा सके, उनको टीच करा सके। क्या आपके गाइडलाइंस होंगी, क्या आपके जो सुझाव होंगे यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन को और पैना बनाया जा सके अपने कृषि प्रधान क्षेत्रों के लिए? ये बहुत सही बात आप कर रहे हैं, और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके एफर्ट्स के लिए। आप का आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पे आप ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र के बच्चों को मेन स्ट्रीम से, मतलब जो एडवांस रिसर्च या एडवांस इंफॉर्मेशन जहाँ से भी मिल सकती है वो आप गैदर करके वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और जैसे कि आपने ये बोला भी कि आज मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम का ज़माना है, और आप सिंगल चीज़ में एक्सपर्टाइज होके आप सस्टेन नहीं कर सकते ज़्यादा समय, और ये आगे और चैलेंजिंग होगा भी कि हमें हर 4 या 5 साल के बाद हमें एक नया स्किल डेवलप करना पड़ेगा। हम एक स्किल के साथ अपना पूरा करियर डेवलप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आई थिंक बच्चों को अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर इसी टाइम पे अगर होता है, जब वो स्कूलों में अभी पढ़ रहे हैं और अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर उनको अलग अलग फील्ड्स, कैसे कैसे फील्ड्स जो हैं वो
एग्रीकल्चर हो या किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो या किसी भी लाइन में वो जाएं, तो वो क्या क्या अलग अलग चीज़ें एडवांसमेंट हो रही हैं। जैसे कि अभी जो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर जो मैं एनविजन करता हूँ या जो मैं देखता हूँ, जो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर होगा वो इतना एफिशिएंट होगा, इतना मतलब रिस्पॉन्सिव रहेगा, जहाँ पे हम बहुत नैनो स्केल पे, बहुत लोअर लेवल पे जाके प्लांट्स की और क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम जज करेंगे और उनको हम मैनिपुलेट करेंगे और उसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो सिस्टम इतने एफिशिएंट हो जाएंगे आप बिलीव नहीं करोगे। अभी पीछे जैसे एक आर्टिकल आया था एंड उसमें एक पालक के पौधे के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे और उसके साथ में उन्होंने एक ऐसा एक सेंसर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। तो इसमें सिर्फ जो सेंसर डेवलप करेगा वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं होगा, ठीक है, और जो जो सिर्फ सेंसर डेवलप कर सकता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम को भी नहीं समझ सकता। तो ये एक इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको बायोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए, आपको इंजीनियरिंग की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस की समझ होनी चाहिए, आपको इस तरह की समझ। तो उन्होंने क्या किया कि उस पालक के पौधे को जब वो ग्रो कर रहे हैं तो अगर वो चेंज होता है, उसको पौधे को अगर लगता है कि मुझे ये न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो इट विल सेंड ए सिग्नल एंड वो सिग्नल जो है वो कैच करेगा एक सिस्टम, वो जो वहाँ पे उन्होंने सिस्टम लगा रखा है। तो उन्होंने सिस्टम उसको प्लांट के पूरे प्रोफाइल को इस तरह से स्टैंडर्डाइज कर लिया हुआ है कि वो जैसे ही प्लांट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो उससे उनको पता लग जाता है कि इसकी अभी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट्स का इंफॉर्मेशन का सिग्नल ट्रांसमिट होता है, वो कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो फार्मर है वो कहीं दूसरे अपने जगह पे है तो उसके फोन पे मैसेज आ जाता है या उसको ईमेल आ जाती है कि मेरे प्लांट्स को इस टाइम इस तरह की चीज़ की जरूरत है। तो वो क्या करता है, वो एक अलग सेंसर से या एक अलग वहाँ से कमांड देता है और क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वो उसके मैसेजेस जाते हैं और वो वहाँ पे उस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाती है। तो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, इन सब के मिलने से इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। तो ये हम अगर ऐसा सोचें कि सिर्फ हमने एक ही फील्ड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है या इसमें वो करके हमारा करियर अच्छा रहेगा, फ्यूचर में वो बहुत चैलेंजेस होंगे जिन लोगों, जैसे मैंने जब अपने पीएचडी किया था तो मेरा जो ज़्यादातर फोकस था वो बायोलॉजिकल सिस्टम पे था, लेकिन आज जो रिसर्च हो रही है वो माइक्रोबायोम जो है, आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आपको कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट होना पड़ता है, आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ में लर्न करनी पड़ती हैं, नई नई चीज़ें, आप नई नई स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को एग्रीकल्चर में जैसे माइक्रोबियल इंटरेक्शन एक आस्पेक्ट होगा, इसके साथ साथ में उसमें फिजिक्स का क्या आस्पेक्ट हो सकता है, उसमें और क्या क्या इंजीनियरिंग का क्या आस्पेक्ट हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के साथ भी अगर हम बच्चों को उन चीज़ों का एक्सपोजर देंगे तो एक नई सोच वो डेवलप कर सकते हैं जिसके साथ वो अपना करियर को अच्छे से मुझे लगता है शेप दे पाएंगे। जी, बहुत सही है। एक बहुत सही बात बताई आपने कि अगर कंप्यूटर, मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी थोड़ी सी जो है नई थी कि हम रियली एग्रीकल्चर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं, जो कि एक तरह से मेरी भी फेवरेट सब्जेक्ट है अभी फिलहाल की। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत जरूरी हैं और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन स्टूडेंट्स को देने का ही हमारा जो है एक एटलीस्ट एक फ्लेवर दे सके इन दूर दराज के गांव के स्टूडेंट्स को जो हमसे कनेक्टेड हैं। यही हम ट्राई करते रहते हैं हम लोग। तो कुल मिला के सेशन काफी जो है इंटरैक्टिव रहा, काफी अच्छा रहा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इवन हम जैसे लोगों को भी जो है मिली इस पोर्टल के माध्यम से। तो कोई क्वेश्चन हो, हम बच्चों का जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, 5 मिनट का टाइम हर बार की तरह हम ओपन करते हैं। अगर बच्चे 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो 5 मिनट के लिए हम ओपन होंगे सेशन फॉर्मली क्लोज होने के पहले। कोई हैंड रेज कर सकता है या टेक्स्ट में लिख सकता है, मैं उनका जो है माइक और अनम्यूट कर दूंगा।
पंकज जी। हेलो सर। हाँ प्रतीक जी। सर जो ये खरपतवार नाशक यूज होता है, तो सर ये इसका प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे हम धान में डालते हैं तो धान बच जाती है, और और जो अलग खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो कैसे प्रोसेस क्या होता है इसका? तो आप ये जानना चाहते हैं खरपतवार का मतलब किस तरह से चुनाव किया जाता है और किस तरह से डाला जाता है और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? क्या मैं हाँ सही सर, समझ? जो जैसे सर हम धान में डालते हैं, अभी धान की रोपाई चालू है, तो सर उसमें डाल देते हैं तो खरपतवार, केवल खरपतवार उसमें नष्ट हो जाते हैं, बाकी धान तो सेफ रहती है फिर। हाँ जी। तो वो कैसे होता है, पहचान लेता है? ओके, मतलब ये कैसे एक एक जो मतलब कि अगर पौधे को अगर मारना है तो सभी को मारेगा, तो वो कैसे हम इस तरह की सोल्यूशन बना रहे हैं या इस तरह के पेस्टिसाइड बना रहे हैं जो बहुत सेलेक्टिवली एक ही तरह की चीज़ों को, मतलब जो वीड है उन्हीं को मारता है और सिर्फ जो धान है आपका वो उसको उसको वो नुकसान नहीं करता है। तो यस सर। इसका मैं सही में बोलूँ तो मैं एक केमिकल इंजीनियर ताकि चीज़ों को डेवलप कर किया हो। लेकिन हाँ, मतलब ये चीज़ें हमने भी एक्सपीरियंस की हैं कि जो पीडीसाइड्स होते हैं या खरपतवार हैं जो जब हम डालते हैं तो उसमें बहुत सिलेक्टिवली वो एक पर्टिकुलर क्रॉप को वो करता है, अटैक करता है। तो इसके लिए बहुत मतलब अलग अलग चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। पहले ये समझना पड़ता है कि धान और जो खरपतवार है उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अलग हो सकती हैं, तो वो सेलेक्टिवली हम फिर टारगेट कर सकते हैं। तो उस तरीके से अप्रोच बनाई जाती है। तो दोनों पौधों को, जो भी हमारा जो चाहे वो धान है और वो खरपतवार है, दोनों को हम समझते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी की जाती है कि ये किस तरह का रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या इसका फिजियोलॉजी क्या है। तो वो पूरा का पूरा उसका एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स किए जाते हैं जहाँ पे हम केमिकल्स का इस्तेमाल, अगर खरपतवार अगर आप बता रहे हो तो उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो केमिकल्स जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसको जो खरपतवार है उसके किसी किसी वाइटल फंक्शन को जाके वो डैमेज करता है। तो वो उसका वाइटल फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है, जो कि डिफरेंट है, जो धान में नहीं है। तो धान जो है वो आपका सेफ रहेगा क्योंकि वो ऐसी जगह पे टारगेट कर रहा है जो धान में होता ही नहीं। तो वो सिर्फ वीड में होता है, तो आपका वीड जो है वो जल जाएगा, लेकिन आपका धान जो है वो बच जाएगा। तो ये इस तरह से ये चीज़ें का डेवलपमेंट किया जाता है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन किस तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजीज बनाई जा सकती है या बनाई जाती हैं, तो उसका ये एक फॉर्मेट रहता है। जी, और कोई ये पूछना चाहता है कुछ? रितिका। हेलो, दिस इज पंकज। सर, मेरा क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ उसी से रिलेटेड है, बट मैं थोड़ा सा और इलाबोरेशन चाहूँगा उस पे कि कैसे एक्चुअली रिसर्च कोई कर रहा है, पॉलिसी कोई बना रहा है और इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है, तो एक एक बड़ा लूप है। तो इसके बीच कैसे किसान खुद को कन्विंस करे कि जो उसको बताया जा रहा है वो उसके लिए अच्छा है, या जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो कितना अपडेटेड है कि एक्चुअली जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो पॉलिसी बनाने में उसका योगदान दे रहे हैं। ओके, हाँ, ये बहुत वाकई बहुत बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हमें ये सब समझना कि क्या रिसर्चर जो रिसर्च करता है या जो कोई एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है उसका क्या रोल रहता है पॉलिसीज बनाने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं होता है जो अभी तक का हमारा जो अपना एक्सपीरियंसेस रहे हैं,
क्योंकि पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स आर टोटली डिफरेंट। वो बहुत अलग तरह के लोग होते हैं। जो रिसर्चर्स हैं, जो कम्युनिटी जो रिसर्च करती है या जो R&D करती है, उनका रोल ये रहता है कि वो नई नई तकनीकें ईजाद करें। उनका ये चीज़ रहती है कि मैंने ये डेवलप कर दिया है। अब उसके बाद एक डिफरेंट सेट ऑफ कम्युनिटी है जो कि उस टेक्निक को मल्टीप्लाई करती है। यानी कि रिसर्चर ने वो एक रिसर्च लैब में किया है, उसने एक स्मॉल स्केल पे किया है। अब उसको कोई बंदा या कोई कंपनी या गवर्नमेंट सिस्टम को अब इतना नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इस तरह के चीज़ों को आगे परसू करती है, या कोई एंटरप्रेन्योर है जो खुद से वो करना चाहता है। जैसे कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है या कोई PhD स्टूडेंट है, इसने देखा है कि हाँ ये रिसर्च बहुत अच्छी है और इससे अच्छा या इस टेक्नोलॉजी को अगर हम मार्केट में लेते हैं, मास मल्टीप्लाई करें, तो इससे हम बेनिफिट भी कमा सकते हैं खुद को, और फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा। तो ये बहुत एक बोलते हैं एक थिन बैलेंस है, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है रिसर्चर, उसका जो बेनिफिट है उसका ये है कि उसको नई तकनीकें ईजाद करनी है। उसका फोकस उस चीज़ पे है कि मुझे नई चीज़ें ईजाद करनी है, और जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने एड्रेस करना है, उन प्रॉब्लम्स को मैंने सोल्यूशन लाना है। तो उसका रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रोल आता है जो टेक्नोलॉजीज को मास स्केल पे प्रोड्यूस करता है या वो उसको मार्केट में अवेलेबल कराता है। तो वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, वो कोई भी तरीके से कोई इंडिविजुअल हो सकता है। जब उसमें सरकारें जो है फैसिलिटेट कर सकती हैं, लेकिन अधिकतर ये अलग तरह के इंडिविजुअल्स के पास जाता है। तो वो जो है अब उस बंदे का जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रिस्ट है, अब ये उसका परव्यू आ जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। उसने एक टेक्नोलॉजी को लैब से लेके मास स्केल तक वो लाया है। तो उसको वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को कन्विंस करना है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी हैं और वो उनको बल्कि मार्केट में लाना चाहता है, ताकि वो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए और वो मार्केट में उसको ला पाए। तो वो उसका परव्यू आ जाता है, यानी कि उससे जो फायदा और नुकसान होगा वो उस इंडिविजुअल का होता है। तो वहाँ पे वो अब जो पॉलिसी मेकर है वो देखेगा कि वो ठीक है, ये नई तकनीक हमें प्रपोज की जा रही है, एक नया मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास लाई जा रही है जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से एडवांस है, और इसका रिसर्च भी वो देखते हैं। रिसर्च अगर वो चाहें तो वो रिसर्चर से फीडबैक ले सकते हैं या एक रिसर्च कम्युनिटी से फीडबैक लेते हैं। बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि हमारे आपने पता नहीं जयराम रमेश जी के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन जब वो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स थे तो BT ब्रिंजल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेशनली जितने भी लोग थे, जितने भी रिसर्चर्स थे जो ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रमोट करते थे या उस पर रिसर्च करते थे, वो उन्होंने उनको भी खत लिखे, उनको भी उनसे भी उन्होंने सुझाव मांगे, और जो लोग उसके अगेंस्ट थे उन्होंने उनसे भी सुझाव मांगे, और दोनों तरह के लोगों ने सुझाव दिए, और उसके बेसिस पे उन्होंने जज किया ये जो टेक्नोलॉजी है ये अच्छी है, देखने में लग रहा है कि ये अच्छी है और इससे फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट होगा, लेकिन इसके साथ कंसर्न भी है क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए नुकसान हो सकता है कल को इससे कुछ अलग तरह के चैलेंजेस हमारे पास आए, जिसका हमारे पास आज कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों की एप्रीहेंशन है, और एप्रीहेंशन ऐसे किसी की नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है विज्ञान का, तो यानी कि किसी वैज्ञानिक का उसके ऊपर एप्रीहेंशन है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो वो उन्होंने उस पॉलिसी को डिले किया, उन्होंने उस पॉलिसी के ऊपर डिसीजन नहीं लिया। तो पॉलिसी मेकर्स जो है वो उस तरह से डिसीजन लेते हैं जनरली। अगर एक मतलब हम बोलें कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है, एक मतलब जहाँ पे हर तरह से डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, तो वो वैसे होता है। लेकिन बहुत बार डिसीजन ऐसे भी होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ओके, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो पॉलिसी मेकर है उसको कितना होने वाला है, यानी कि अगर वो पॉलिटिशियन है तो उसको लगता है कि इससे मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि रिसर्चर का बेनिफिट हुआ, उसने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी और उसने एक सोल्यूशन ला के दिया, जिस जॉब के लिए उसको रखा गया था उसने अपनी वो नौकरी। अब जो उस
टेक्नोलॉजी को मल्टीप्लाई कर रहा था, उसका बेनिफिट ये है कि अब वो टेक्नोलॉजी कितनी चाहिए उसको उससे बेनिफिट आना चाहिए, उसका उसमें ये बेनिफिट रहेगा। अब जो पॉलिसी मेकर है वो वहाँ पे अगर अपना पर्सनल बेनिफिट देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। वो देखेगा कि इससे मेरे को पॉलिटिकली कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या मुझे लोगों के वोट्स इससे मिलेंगे। अगर वो पॉलिसी मेकर एक पॉलिटिशियन है, अगर वो पॉलिटिशियन नहीं है, अगर वो ब्यूरोक्रेट, तो उसकी अलग तरह की सोच है। तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, उनका एम क्या है, उनका फोकस क्या है, उसके बेसिस पे पॉलिसीज बनती हैं। कई बार ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उनमें हमेशा ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है और साइंटिस्ट लोगों से जिन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं उनसे फीडबैक लिए जाते हैं, कई बार लिए जाते हैं, कई बार नहीं भी लिए जाते हैं। कई बार ये मार्केट ड्रिवन चेंजेस होते हैं, यानी कि मार्केट का प्रेशर इतना है, बिजनेसमैन कम्युनिटी का प्रेशर इतना है, गवर्नमेंट को इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई बार फार्मर्स की साइड से डिसीजन आ जाते हैं, वो प्रेशर इस तरह से आ जाता है कि उनको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं या विड्रॉ करने पड़ते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो ये पॉलिसीज का जो सिस्टम है ये बहुत ही एक बोलते हैं इंटरैक्टिव सिस्टम है, जहाँ पे जिसका जितना दबाव है उस हिसाब से पॉलिसीज डेवलप होती है। तो मेरे ख्याल से पॉलिसीज जो एक जेन्युइन तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इनका सही में एवेल्युएशन, बिकॉज कई बार किसान को भी पता नहीं होता है कि इसका क्या बेनिफिट होना है क्या नहीं है, वो अज्ञान, उनको तो पता ही नहीं है कि हाँ ये सही है या गलत है। और जो इंडस्ट्री वाला है उसको सही या गलत नहीं देखना है, उसको तो अपना बेनिफिट देखना है, उसको ये देखना है कि अगर वो एक इंडस्ट्रीज की अलग अलग तरह के हो सकते हैं, या जो भी ये प्रोडक्शन कर रहा है, एक बंदे का जो सोच है वो ये हो सकती है कि वो इन्वायरमेंट के बारे में या लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता हो। वो हो सकता है वो ऐसा सोचता हो जस्ट मुझे इसमें मेरा पैसा बन जाए, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, किसी का नुकसान होना है होता है। तो ये अलग अलग तरीके से वो पॉलिसीज बनती है। लेकिन हाँ ये फीडबैक होना चाहिए सब लोगों का। एक मल्टी पॉलिसी में जब पॉलिसी बनती है तो एक रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिसी जो भी जो प्रोड्यूस का जो कंज्यूमर है, यानी कि अगर फार्मर के लिए पॉलिसी बनती है तो फार्मर्स के साथ डिस्कशन होना चाहिए। और पॉलिसी मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इंडस्ट्री वाला बना रहा है तो उसको भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो जिसने इसके ऊपर रिसर्च करी उसका भी उसमें इनपुट लेना चाहिए। तो जनरली पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए, बट ऐसा आइडियल सिचुएशन हम बोल सकते हैं लेकिन होती। तो दैट हाँ यस पंकज जी के रियली पंकज जी के क्वेश्चन पर बहुत अच्छा जो है आपका एक्सप्लेनेशन था। इनफैक्ट हम किसी तरह से ये क्वेश्चन मिस कर गए थे और ये इन्होंने उठाया। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे जो पार्टिसिपेंट्स है वो ऋतिक का है। ऋतिक कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपना माइक ऑफ करके ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। जी ऋतिक। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में डिफरेंस क्या है मेजर? ओके, एरोपोनिक्स जो है मतलब जहाँ पे आप जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हो किसी सोल्यूशन के साथ। जैसे हाइड्रोपोनिक्स है उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका न्यूट्रिएंट्स वो पानी के साथ चैनलाइज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एरोपोनिक्स में क्या होता है वो मिस्ट फॉर्म में जाता है, यानी कि वो हवा में जाएगा। तो जो प्लांट का रूट है वो ऐसे हवा में लटका हुआ है और उसके ऊपर स्प्रे जैसा हो रहा है, ठीक है, वो मिस्ट के रूप में जा रहा है और वहां से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एरोपोनिक्स हो जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स में वो पानी के बीच अंदर वो डूबा हुआ होता है और पानी जो सर्कुलेट होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और दोनों ही चीज़ें जो है वो मतलब हाइड्रोपोनिक्स जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। बहुत सारे हाइड्रोपोनिक्स के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट बेस्ड तरीका होता है, एक होता है जहाँ पे आप जो प्लांट आप ग्रो कर रहे हो उसके साथ साथ में आपने फिश ग्रो करके रखी है। तो पॉन्ड जो आपका टैंक है पानी का वहाँ पे आपकी फिश है और फिश को आप जो प्लांट सर्कुलेट हो रहा है उसके साथ जो डेड मटेरियल आ रहा है, जो रूट्स आ रही हैं वो फिश खा रही है और फिश का जो
रिलीज हो रहा है वहाँ पे, तो वेस्ट वो सर्कुलेट होकर प्लांट्स में जा रहा है, तो वो भी एक अलग तरीका होता है। इसको साथ में लोग चिकन वेस्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं, तो इसको अलग अलग तरीके से वो करते हैं। तो इनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन बॉर्डरली देखा जाए तो एरोपोनिक्स इज समथिंग लाइक जनरली वो मिस्ट फॉर्मेट में आना चाहिए। इट्स लाइक उसमें मतलब आपका रूट जो है वो डायरेक्टली वाटर में डिप नहीं होता, लेकिन बेसिक में अगर देखें तो वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों में ही न्यूट्रिएंट्स हम मतलब आपको सॉइल लेस प्लांट ग्रो कर रहे हो, प्लांट को आप सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे हो, एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर रहे हो, तो इस तरह से। जी थैंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा अच्छे से, और बहुत बहुत धन्यवाद राही जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और इस पूरे सेशन को जो है संचालित किया डॉक्टर शर्मा जी ने, जो कि हमारे यूएसएफ के मेंबर हैं, और बहुत सारे मामलों में हम लोगों का जो है एक तरह से ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, एक तरह से गाइड कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को रन करने के लिए, इस पूरे जो है इस तरह के प्रोग्राम्स आप सब लोगों के सामने लाने के लिए। आप सभी भी हम लोगों के इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं। डिटेल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और इसी के लिए बहुत बहुत मैं इसी के साथ ये पूरा सेशन यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर, अगर आप कुछ लास्ट में कहना चाहें हमारे स्टूडेंट्स से। Thank you, Sunil, and thank you very much, Dr. Rahi, for accepting the invitation and giving this like a very valuable and very informative knowledge to our students. I'm very obliged for your kind acceptance. Thank you very much, and all the members, thank you for the nice question and patience. Thank you very much. Bye. Yeah, bye. Thank you. Thank you.